بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو ہیں جیل میں، ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا جا چکا، اور ان کے 10,000 سیاسی قیدی بھی جیلوں میں ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. ان کی تمام لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے، یا روپوش ہے یا مفروض ہے، اور کسی کے بچے، کسی کی بیگم، کوئی بھائی بہن، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس وقت ان پہ قہر نازل ہے ریاست کا، حکومت کا، حکومتی اداروں کا. دوسری جانب 15 جماعتی حکمراں اتحاد جو کہ بڑے ذوق شوق سے لایا گیا تھا، اب 15 جماعتی حکمراں اتحاد کے اپنے اندر جو ہے وہ برتن کھڑک رہے ہیں. ایک دوسرے کے جو ہے وہ گلے نوچے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے نوچے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گریبان بن جا کے آپ کی تصویر نظر آئے گی. اور جو اس وقت ملک میں بحران ہے، کرائسس ہے، اور پاکستان کے عوام رل گئے ہیں اور سڑکوں پر ہیں، جن کو نہ روٹی نصیب ہو رہی ہے، نہ چائے، نہ چینی، نہ پتی، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس. یہ سب کے سب جو ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ ہیں، مسلم لیگ نواز کہتی ہے آپ ہیں. اور اب جو اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ، دنیا کی سب سے بڑی کابینہ کے 172 ارکان ٹوٹل تھے، اور 172 میں سے 87 جو ہیں وہ کابینہ کے ارکان تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، معاونین تھے. ایک لمبی فوج تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مزے لوٹے، مسلم لیگ نواز نے بھی مزے لوٹے، اور پھر باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مزے لوٹے. اور سب سے مزے کی چیز ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ سب سے زیادہ وہ انہوں نے انجوائے کیا اس اقتدار کو، اور اب آرام سے بیٹھے ہیں، کسی تنازع میں وہ اپنے آپ کو نہیں لا رہے. اس وقت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. عرفان صدیقی صاحب نے جواب دیا، اور اس کے جواب میں پھر ناصر شاہ صاحب آئے، ناصر شاہ صاحب کا جواب دیا احسن اقبال صاحب نے، پھر نوید قمر صاحب آ گئے، اور اب فیصل کریم کنڈی صاحب آ گئے. ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اتنے وزیر تھے، آپ کے اتنے مشیر تھے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ہم نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، آپ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، سب نے مل کر کیا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سب نے مل کر کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ بجٹ جب منظور ہونا تھا، بجٹ سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کیسی زبردست تھی، اور شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو کیسے للکار رہے تھے. اور اس کے بعد پھر مکمکہ ہوا، اور ترقیاتی فنڈ کے نام پہ، سیلاب متاثرین کے نام پہ 50 ارب 60 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو منتقل ہوا. پھر ایم کیو ایم آ گئی، پھر کوئی اور جماعت آ گئی، پھر چھوٹی جماعتیں آ گئی، پھر بڑی جماعتیں آ گئی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے. اس طریقے سے وہ پیسہ بندر بانٹ تقسیم ہوئی، اور کتنے سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ تقسیم کیا گیا. اس طریقے سے بجٹ منظور ہوا، اور پھر شہباز شریف بلے بلے، باقی سب A1 ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب بھی زبردست وزیر خزانہ بن گئے. یہ اس وقت کی تقریریں یاد کر لیں، یہ اب کی نہ کریں، کیونکہ یہ گریبان اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے، ان کو اپنے چہرے نظر آئیں گے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور IMF کے ساتھ معاہدہ جو کہ 9 مہینے پہلے ہو سکتا تھا اور آسان شاید ہو سکتا تھا، وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور پورا اقتدار کی مدت پوری کرنے کے لیے آخری مہینے آ کے انہوں نے، ڈار صاحب نے معاہدہ کیا. جب ڈالر بے قابو، جب پیٹرول ڈیزل بے قابو، جب گیس بے قابو، ہر چیز مہنگائی عروج پہ تھی، اس وقت وہ معاہدہ کر کے گئے. تو جناب اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی کا ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کا ہے، ایسی نہیں ہے. اور اب دونوں کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اب کاکڑ صاحب آ گئے. کاکڑ صاحب نے بہت، وہی بات ہے کہ صحیح بات نہیں بتائی جاتی. کاکڑ صاحب نے کہا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بلا لیا. شمشاد بیگم صاحبہ نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ اسی طرح چلے گا. اس کے بعد اب وزیر توانائی محمد علی صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے ساری بات بتا دی ہے. انہوں نے ایسا فارمولہ بتایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. شریف آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کم نہیں ہوگی، بجلی کی قیمتیں بالکل نیچے نہیں آ سکتی. یہ ہے بنیادی بات. اور پیٹرول کم ہوگا تو بجلی کی قیمت، نہ پیٹرول کم ہوگا نہ بجلی کی قیمت نیچے آئے گی، نہ ڈالر کم ہوگا نہ ڈالر کی بجلی کی قیمت نیچے آئے گی. یہ ہے حقیقت. اور نگراں وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ 60% بلنگ ریکوری نہیں ہوتی، اس پر کام کر رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے، ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ IMF نے بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان بھی مسترد کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 2020 سے قبل فرنس آئل سے فائدہ نہیں تھا، آج ہو رہا ہے. اور اگلی بات جو بڑی ہی حیران کن ہے، وزیر توانائی نے کہا کہ پاور سیکٹر کے اجلاس کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں تھا. اجلاس میں تو صرف نگراں وزیر اعظم کو پاور سیکٹر کے حوالے سے بریفنگ دی جاتی تھی. تو یہ صورتحال ہے، یہ ہے معاملات. اب
ये तो आपको मैंने बता दिया, बिजली की कीमतों का भी बता दिया सारा कुछ, और बिजली की कीमतों का सारा मलबा जो उन्होंने डाल दिया है वो अदलिया पे डाल दिया है, लाहौर हाई कोर्ट पे डाल दिया है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हुक्म इत्मीनान जारी किए हुए इसलिए ये सारा नुकसान बिजली चीनी के मामलात में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पे डाल दिया है चीनी का मामला। अब आते हैं ड्राइविंग सीट पे अब कौन बैठा जी, ये तो इनकी आपस में चल रही है। ड्राइविंग सीट पे अमेरिकी सफीर आ चुके हैं, और एक तरफ ड्राइविंग सीट कामरान खान साहब कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट आर्मी चीफ के पास है, और उन्होंने मईशत को संभाला देने के लिए और इस्लाहात के लिए कुर्सी सदारत संभाल ली है। शफकत गनी साहब कहते हैं कि ये इतना गलत फैसला होगा कि अगर आर्मी चीफ इस मामले में उलझे तो उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा, और ये चीजें इस तरह से ठीक होने वाली नहीं है जैसे उनको ब्रीफ किया जा रहा है, इसलिए ये काम ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और जिसका काम है उसी को करने दें, माहिरीन मईशत है और ये तवील दौरानिए का काम है वो करें। लेकिन दूसरी जानिब जो है अमरीकी सफीर जो है वो भी ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, और उन्होंने पहली मुलाकात की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुल्तान सिकंदर राजा साहब से। सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने सदर ममलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप इस मामले में इर्रेलेवेंट हैं, आपके पास ना मुझे आने का कोई फायदा और ना ही कोई डिस्कशन करने का फायदा, आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, वो तो फैसला हम करेंगे। उसके बाद अमरीकी सफीर की मुलाकात होती है निगरान वजीर आजम से, फिर होती है मरियम साहिबा से, और उससे पहले मुलाकात जो उनकी हुई थी वो हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब को नाश्ते पे बुलाया था, मुख्तलिफ सफीर थे, और उस मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और अमरीकी सफीर बाहर हैं। तो सूरत हाल यह है कि अब अमरीकी सफीर जो है कल वो गए हैं, और उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की वो भी इंतखाबात से मुतालिक, साफ शफाफ और बर वक्त इंतखाबात का वो कहते रहे कि बर वक्त इंतखाबात होने चाहिए। निगरान वजीर आज़म से मिलने गए, बर वक्त इंतखाबात की बात की। अब उन्होंने कल मुलाकात की है निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, जो कि इस वक्त गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि 90 दिन पूरे हो चुके और उनकी जो हैसियत है वो हैसियत मशकूक भी है और गैर कानूनी भी है, और उस पर क्वेश्चन उठाया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी फाइल हैं। इसमें जो अमरीकी सफीर ने जो स्टेटमेंट जारी किया, अमरीकी सफारत खाने का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के मौके पर बात हुई, इंसानी हकूक और मजहबी अकलियतों की बुनियादी आजादियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और इस पर बात हुई, यानी कि वो जो जलियांवाला वाक़या हुआ उसकी बात की गई, और उससे अगली जो बात की गई वो है कि अकलियतों की बुनियादी आजादियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर अगली जो डिस्कशन हुई वह जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम, इस पर भी बातचीत की गई। अब जमहूरियत जाहिर है इस वक्त जमहूरियत तो नहीं है, इस वक्त तो गैर मुंतखब हुकूमत है और बड़े बड़े फैसले करने के मूड में है, और दूसरा है कानून की हुक्मरानी, तो कानून की हुक्मरानी भी नहीं है, लिहाजा ये दोनों बातें इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इन दोनों बातों पे अमरीकी सफीर ने मोहसिन नकवी साहब से कोई ना कोई बात की होगी। और इसके अलावा अगली जो मुलाकात उनकी हुई वो हुई आईजी पंजाब के, वहां गए और वहां पे उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी का एहतराम, अगेन वही बात हुई, कानून की हुक्मरानी का एहतराम और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत को बात की गई। खवातीन और लड़कियों के लिए इंसाफ तक रसाई को बढ़ाया और पुलिस में सिनफी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया। अब आईजी पंजाब जो है खदीजा शाह, उनके हिरासत में उन्होंने ये काम किया। 9 मई को उन्होंने किसी को नहीं रोका, और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम और फलक उन खवातीन के साथ थी। फिर उमर सरफराज जो साबिक गवर्नर है उनकी अहलिया, ये सारे के सारे मामला उनके हो रहे हैं। तौहीन अदालत के नोटिस, इंक्वायरी, सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। गैर इंसानी सलूक वहां पे हो रहा है। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, पंजाब में हुआ, ये सारे के सारे मामला पंजाब में हो रहे हैं, और अकलियतों के जो जलियांवाला का साना हुआ वहीं हो रहा है। तो इस पे तनकीद भी की जा रही है अमरीकी सफीर के बारे में, और मेरा ख्याल है कि ये अमरीकी सफीर का कसूर इतना नहीं है, ज्यादा कसूर जो है वो हमारे हुक्मरानों का है, क्योंकि ये तो हमारे तो दफ्तर खारजा के इल्म में होता है कि कोई भी सफीर जब जाते हैं तो वो बता के जाते हैं और इजाजत लेके जाते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो लिहाजा ये इन्होंने इजाजत दी है और ये ओपन किया है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो अमरीकी सफीर जो है अब माइन्यूटली वो इन सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं और सारे मामला को देख रहे हैं। अब एक और खबर है वो मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि बात हो रही है इस वक्त 100 अरब डॉलर की, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है।
और वो 25 अरब डॉलर सऊदी अरब, 25 अरब डॉलर यूएई, 25 अरब डॉलर कुवैत और 25 अरब डॉलर कतर। तो अभी तक सऊदी अरब की बात सामने आज, इसमें कुछ तो है, ये एक तो एयरपोर्ट्स आप देने हैं, लेकिन इसमें बीमार सनती यूनिट अभी तक जो निगरान हुकूमत है बीमार सनती यूनिटों की अभी बात नहीं कर रही, जो कि कौमी खजाने पर बोझ है। वो पीआईए है, वो रेलवे है, वो मुख्तलिफ कारपोरेशन हैं, वो स्टील मिल है, उन पे बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है मादनियात पे और ज़राअत पे। गौरतलब बात यह है कि यूएई और सऊदी अरब इनको जो जमीन लीज पे देनी है उसमें कहा जा रहा है कि कारपोरेट सेक्टर होगा, हजारों एकड़ जमीन दी जाएगी और उस पर वो सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि ज़राअत के शोबे में वो बहुत ज्यादा उनका तजर्बा है। तो ना ही सऊदी अरब ज़राई मुल्क है और ना ही ज़राई मुल्क है यूएई। तो फिर ये जो तहकीक और रिसर्चर्स हैं, जो साइंसदान हैं, ज़राई साइंसदान और ज़राई साइंसी तहकीककार, वो कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, इस पे अभी ये बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है। और दूसरा जो बात है वो है कि मादनियात के शोबे में बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो 25 अरब डॉलर। अब निगरान वजीर आजम जनाब काकर साहब ने भी ये बता दिया है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान उन्होंने किया है। अभी तक सऊदी अरब की तरफ से तो कोई बात नहीं आई, ये हम आर्मी चीफ साहब से सुन रहे हैं या फिर निगरान वजीर आजम ने बात की है। अब उसमें हमने भी कुरेदने की कोशिश की, ये 25 अरब डॉलर का मतलब क्या है, कि कैसे 25 अरब डॉलर आएंगे। निगरान वजीर आजम साहब ने कहा कि सऊदी अरब आगे 2 से 5 साल के दौरान पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ये उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही है। गैर मुल्की सरमायाकारी में उन्होंने कहा जी इजाफा होगा और मादनियात के वसाइल की मालियत करीबन पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर है और निगरान हुकूमत आइंदा 6 माह में तवानाई की 2 सरकारी कंपनियों को निजकारी मुकम्मल कर लेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निगरान हुकूमत आइंदा 6 माह में, तो निगरान हुकूमत तो 90 दिन के लिए है, तो इसका मतलब है इनको आने से पहले बताया गया है कि आप 90 दिन के लिए नहीं आए, बल्कि आपका टेन्योर 6 माह तो वो मान रहे हैं, 6 माह से भी आगे का है। तो ये बातें यहां से निकलती हैं। इस खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी अब तक की सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी, क्योंकि ये गैर मुल्की ज़राए अबलाग थे, उन्होंने ये खबरें दी हैं और यहां से खबरें निकली हैं। अब 25 अरब डॉलर सऊदी अरब का जो है वो हमने कोशिश की जानने की, तो मालूम हुआ कि ये रेकोडेक है, रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब को राजी किया जा रहा है। अगले 10 साल तक ये रेकोडेक में 3 अरब डॉलर सालाना का है, 30 अरब डॉलर 10 सालों में, और फिर आगे इसमें एनहांसमेंट होती जाएगी। तो ये एक एग्रीमेंट है जो एक हमारे सामने मुआहदा आया है। और अब उसमें जो पते की बात है, खबर ये है कि सऊदी अरब को रेकोडेक में लाया जा रहा है। अब उसकी मॉडलिटीज तय की जा रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 30 अरब डॉलर है हमारा, 10 सालों में हमारा जो पोर्शन है और जो कंपनी की तरफ से हमें मिलना है 1.5 अरब डॉलर, तो 30 अरब डॉलर, तो वो 30 अरब डॉलर जो है सऊदी अरब हमें 4 या 5 सालों में दे दे। वो 30 अरब डॉलर, वो उसमें 24 अरब डॉलर उसने मेरी इतला के मुताबिक 24 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर सालाना दे दे या 5 अरब दे दे। तो जो हमने लोन देना है अगले 3 सालों में 32 अरब डॉलर, तो उसका मेन पोर्शन जो है वो इधर से सिक्योर हो जाएगा। जो ये कहा जा रहा है कि बड़ी सरमायाकारी आ रही है, तो उसके आगे फिर क्या होगा ये इसका मुझे इल्म में नहीं है, क्योंकि कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझ तक जो पहुंची वो ये थी कि रेकोडेक के साथ सऊदी अरब का बहुत गहरा ताल्लुक बनता जा रहा है और उसमें ये सारी की हैं, और हम हो सकता है कोई एडवांस पेमेंट सऊदी अरब से ले लें और सऊदी अरब के को सबलेट कर दें या आगे रेकोडेक में उनको डाल दें। ये है एक। और दूसरा ज़राअत का तो है ही है, 42-45 हजार एकड़ है, उसमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, और उसमें हो सकता है आगे जाके कुवैत और कतर भी आ जाए। तो एयरपोर्ट्स का तो पहले ही पता है। तो ये चीजें जो है वो लीज पर दी जा रही हैं। तो जमीनों का जो मामला है वो तो इससे अच्छा और भी हो सकता है कि हम अगर बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं तो जमीनें तो हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को और बेरोजगार नौजवानों को दे सकते हैं। 5-5 एकड़, 10-10, 20-20 एकड़ उनको दे सकते हैं। ये 42,000 में से अगर 10,000 एकड़ भी दे दें तो इस तरीके से हमारी तो लाखों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है, अगर वो नौजवानों में दे दी जाए तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। तो ये थी कुछ खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।